अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have fourth juz of Quran, and its name is Lan Tanalu. The meaning of this, because Allah subhanahu wa ta'ala revealed first words of this juz about spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." You can never attain to piety unless you spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala out of that which you like the most. सबसे ज़्यादा जो आपको प्यारी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जिससे आप प्यार करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में खर्च करें, तो फिर तुम नेकी को पा सकते हो। हरगिज़ नहीं नेकी पा सकते। ऐसे यानी कि जो गारबेज चीज़ थी, जो आपकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत से ज़ायद था, वो अल्लाह की बारगाह में भी दे दी, वो नेकी आपको नहीं मिलेगी। कुरान से लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून. If you spend the thing which you love most, that after that you will get the piety from Allah subhanahu wa ta'ala. You will get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. If we spend the beloved thing, lovely thing in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And especially in Ramadan and before Ramadan, we spend and we pay the zakat and sadaqat. And now we have to understand what thing we have to spend, what thing we pay. If we understand the Quran and Hadith, then after that we can pay in the beloved way, in the good way, in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other subject in the fourth para, Allah subhanahu wa ta'ala said about the Baytullah Sharif, Inna awwala baytin wudiya linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. The first house ever constructed for mankind to worship Allah subhanahu wa ta'ala is indeed the one in Mecca. ये बैतुल्लाह शरीफ जो है, ये अल्लाह ताला का पहला घर रुए ज़मीन पर बनाया गया है। इसके बारे में ये इरशाद फरमाया, और फिर कैसे ये इसको बिल्ड किया गया और उसके मकाम इब्राहीम का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इरशाद फरमाया कि उसमें क्या है, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम. There are manifest signs in it, one of which is the station of Ibrahim, मकाम इब्राहीम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उसका भी जिक्र फरमाया है कि ये अल्लाह की निशानियां हैं. And the most thing, beautiful thing, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. The verse number 101 of Surah Al Imran and the first ruku of fourth para. The beautiful thing. And how will you disbelieve now whilst you are ones to whom the verses of Allah subhanahu wa ta'ala are recited, and the messenger of Allah, peace be upon him, is himself present amongst you. तुम कैसे काफिर हो सकते हो? तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो? तुम्हारे अंदर कुरान मौजूद है, कुरान की तिलावत की जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मतलब यह कि ये दो चीज़ें जब तक तुम्हारे अंदर रहेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान एंड साहिब कुरान, ये दो चीज़ें, ये दो जब
तुम्हारे अंदर रहेंगी तुम ईमान से नहीं फिर सकते, तुम्हारा ईमान ज़ाया नहीं हो सकता। और इसके साथ ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ की हिफाजत फरमाने वाला है। अल्लाह इज़ गॉड ऑफ एवरीथिंग, बट दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे हिफाजत ली हुई है, कुरान एंड साहिब कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Quran said, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Indeed, we revealed this zikr, this Quran, and we guard it. और हम ही इसके गार्ड और हिफाजत करने वाले हैं। हमने इसको नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इसलिए कुरान कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, इसकी ज़बर ज़ेर को कोई नहीं चेंज कर सकता, अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करता है। पिछली किताबें सारी चेंज हो गई, लेकिन कुरान is the alive miracle. And the other thing, our deen alhamdulillah is alive deen. ये जिंदा दीन है, ये जिंदा कुरान है। पिछले दीन मर गए, ख़त्म हो गए, किताबें सारी चेंज हो गई, और दीन जिंदा ये है कि हर आने वाले ज़माने का हल इस कुरान के अंदर मौजूद है, इस दीन के अंदर मौजूद है। तो पहले कुरान जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद फरमाता है, और दूसरा ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो भी सूरतुल माइदा के अंदर फरमाया, 6 पारा में आएगा उसका जिक्र भी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यअसिमुका मिनन नास। एंड प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुद आपकी हिफाजत करने वाले हैं। आप जितनी मर्जी जंगों में जाएं, कोई आपको शहीद नहीं कर सकेगा। तो ये दो चीज़ें जब तक हमारा ताल्लुक इनके साथ है, इफ़ वी हैव रिलेशन विद कुरान, if we have relation with Prophet alayhi salatu wasalam, then alhamdulillah we are true believers. If we lose this relation with Quran and relation with Sahib Quran, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, then na'uz billah, we will lose our iman. This is the Quran said, and Allah subhanahu wa ta'ala said. And then Allah subhanahu wa ta'ala said about this ummah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best community, you are the best ummah. Why? Brought forth for the guidance of mankind, you enjoin righteousness, forbid evil, and believe in Allah. तमाम उम्मतों में से जो बेस्ट उम्मा है वो कम्युनिटी ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मत मुस्लिमा, मुस्लिम कम्युनिटी इज द बेस्ट कम्युनिटी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम सबसे बेहतर हो, क्योंकि तुम लोगों को गाइड करते हो, तुम तबलीग करते हो, तुम मैसेज आगे पहुंचाते हो, अगली नस्लों तक मैसेज पहुंचाते हो, इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। और फिर तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अल्लाह ने फरमाया कि ये बेस्ट उम्मा है। द कम्युनिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट कम्युनिटी इन द होल वर्ल्ड। फिर अल्लाह ताला ने इन दिस पारा, इन दिस जोस, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेड अबाउट बैटल ऑफ ओहुद। गज़वा ओहुद के बारे में भी इरशादात इस सूरत के अंदर इरशाद फरमाए, और उसका क्या क्या हुआ था, सहाबा कैसे और कैसे अल्लाह ताला ने मदद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हेल्प, मदद फरिश्तों के ज़रिए भेजी थी, वो सारा जिक्र इस सूरत के अंदर है। और ये वर्स नंबर रुकू नंबर 4 इसके अंदर सारा इरशाद फरमाया। फिर सूद के बारे में, सूद ना खाया करो, यूजरी ना खाया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदअफ़न मुदअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। Believers, don't lie on usury, doubled and redoubled, and keep fearing Allah subhanahu wa ta'ala so that you may prosper. अल्लाह से डरा करो, अल्लाह का खौफ रखा करो, उस दोज़ख से डरा करो जो कि कुफार के लिए बनाई गई है। और फिर अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। Some beautiful things, some beautiful tricks for our life. Allah subhanahu wa ta'ala said, they are the one who spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, whether they are affluent or intelligent, in the both conditions. Subhanallah. Sublimate their anger and tolerant and the fluent of the people, and Allah loves those who benevolent. तंगी में, यानी आपके पास
तंगी है, ज़्यादा माल नहीं है, फिर भी खर्च करते हो, अल्लाह ने ज़्यादा दिया हुआ फिर भी खर्च करते हो, थोड़ा दिया थोड़ा खर्च करते हो, वो ज़्यादा दिया उसने ज़्यादा खर्च करते हो, और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हो। इफ़ यू कंट्रोल योर टेम्पर, अपने आप को कंट्रोल, जब गुस्सा आ जाए तो उसको कंट्रोल करना। वलआफीना अनिन नास एंड फॉरगिव द पीपल, लोगों की गलतियां माफ कर देना। ये इतनी बड़ी चीज अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह लव्स दोज पीपल हु स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन बोथ वे, तंगी में भी और जब आपके पास ज्यादा माल है उस वक्त भी। एंड द अदर थिंग, इफ यू कंट्रोल योर टेम्पर, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना। और जितनी भी गलतियां होती हैं ना, वो गुस्से में ही होती हैं। क्या होता है, वो यार मैं गुस्से में था तो ऐसा कह दिया, बस मैं गुस्से में था तो डिवोर्स दे दी, मैं गुस्से में था तो गाली दे दी। ये सारे काम होते ही गुस्से में, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। और ये गजब आ जाना, गुस्सा आ जाना, ये शैतान की तरफ से होता है। जितने गलत काम हैं वो सारे सारे होते भी उसी वक्त हैं जब तुम गुस्से में होते हो। तो बाद में ओ यार मैं गुस्से में था तो ऐसा। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान कौन है? पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को गिरा देता है। जो दूसरे को गिरा दे वो पहलवान नहीं है। पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। तो सबक ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा पसंद है। और लोगों को माफ कर देना, दूसरे लोगों को माफ कर देना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद बड़ी प्यारी हदीस पाक है, बहुत ही प्यारी हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाए, इफ यू वांट मोर लाइफ, इफ यू वांट मोर रिस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हो, अपनी अगर जिंदगी बढ़ाना चाहते हो, तो फिर 3 काम कर लो। ये याद रख लेना, 3 काम ऐसे हैं, ये आम मशहूर है ना कि जिंदगी जो लिखी है वही मिलनी है। नहीं, जिंदगी बढ़ सकती है। रिस्क जो लिखा है जी वही मिलना है, नहीं बढ़ सकता है। मेरे आका ने फरमाया बढ़ सकता है, जिंदगी भी लंबी हो सकती है और रिस्क भी बढ़ सकता है, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़े तुम उस ताल्लुक को जोड़ो। तुमसे कोई ताल्लुक तोड़ना चाहता है, तुम उस ताल्लुक को जोड़ो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। कोई ताल्लुक तुमसे नहीं रखना चाहता, तुम उनसे ताल्लुक रखो, बर्दाश्त कर जाओ उसका सारा बिहेवियर, तो तुम ताल्लुक जोड़ो, नंबर 1। नंबर 2, किसी न किसी वक्त आपकी हेल्प और मदद नहीं की थी, लेकिन आज उसको जरूरत पड़ गई हेल्प की, तो आप उसकी मदद कर दें। ये बड़ा मसला है। हम ये याद आ जाता, फलां टाइम पे उसने तो मेरी मदद नहीं की थी, तुम वही थे ना, मुझे जरूरत पड़ी थी तो नहीं मदद की थी, तो मैं क्यों करूं? नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी वक्त में उसने तुम्हारी मदद नहीं की थी, आज वो जरूरतमंद है, तुम उसकी मदद कर दो, तो इस मदद करने से तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। जिंदगी भी बढ़ेगी और रिस्क भी बढ़ेगा, ये 2 का। तो तीसरे नंबर पे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लोगों की गलतियां माफ कर देना, दूसरों को माफ कर देना। लोगों से मिस्टेक हुई, गलती हुई, उसको याद ना रखें, उसको माफ कर दें। ये 3 काम हो गए। जो बंदा आपसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे जोड़ो। नंबर 2, के किसी की मदद करना, चाहे उसने तुम्हारी मदद ना की हो, तुम अल्लाह की खातिर उसकी मदद करो। और नंबर 3 पे लोगों को माफ कर देना। ये 3 काम ऐसे हैं जिससे रिज्क भी बढ़ता है और उम्र भी बढ़ती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मुख्तसर करता हूँ, और फिर इसके रुकू नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कुरान में नाजिल फरमाया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, एंड द मुहम्मद, ब्लेसिंग्स एंड पीस बी अपॉन हिम, इज द बेस्ट मैसेंजर एंड नॉट गॉड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, वो मुस्तफ़ा है, वो बेस्ट मैसेंजर हैं। तो ये नाम नामी, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दफ़ा कुरान में नाजिल फरमाया है। 4 दफ़ा नाम मोहम्मद नाजिल फरमाया है।
और एक दफ़ा अहमद, यानी टोटल 5 दफ़ा आका अलैहिस्सलाम के ये असल नाम जो आए हैं। वैसे सिफाती नाम तो आपके बहुत सारे हैं, रसूल है, मुद्दस्सिर है, मुज़म्मिल है, त्वाहा है, यासीन है, वो बाकी सारे सारे आपके नाम हैं। वो तो नज़ीर, बशीर, वो सारे आपके नाम वो तो आते ही रहे हैं। असल नाम जो है वो 4 दफ़ा और अहमद 1 दफ़ा। और फिर बैटल ओहद के बारे में सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिपारे के अंदर और इस सूरत के अंदर नाजिल फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम की एक शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बयान फरमाई है कुरान की सूरत में, वर्स नंबर 159, अल्लाह सुब्हानहू व तआला said फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें इकट्ठी आएंगी, पूरी इंसानियत और तमाम की all communities will be over there and 120 lines will be over there and only one ummat Muhammadiyya, they have 80 lines, 120 टोटल लाइनें होंगी और उनमें से जो 80 लाइनें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया और बाकी जो 40 हैं यानी 2/3 का फर्क है वो बाकी सारी उम्मतें होंगी। उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपका बेस्ट बिहेवियर है, आपके अंदर जो यू आर लीनियंट, दूसरों के साथ जो अच्छा बर्ताव है, ताल्लुक है, यू हैव गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, यू आर लीनियंट फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि, ये जो आप लोगों के साथ अच्छाई और भलाई और नरमी करते हैं, इसकी वजह से आपकी उम्मत की तादाद बाकियों से सबसे ज़्यादा है। और फिर आगे शॉर्टली अबाउट डेथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शोहदा के बारे में इरशाद फरमाया कि शोहदा जिंदा होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से खाते पीते हैं, तुम शाऊर नहीं रखते हो। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना ही चखना है और वो मौत आनी है। Every soul is going to taste death, हर एक ने जाना है, हमने भी जाना है, उसको याद रखना, अपनी मौत को कभी ना भूलना। और फिर सेकंड लास्ट रुकू ऑफ दिस सूरा आल इमरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला revealed some du'as, supplications of औलिया एंड सूफिया। आपने वो अल्लाह की बारगाह में कैसे दुआ की जाती है, दुआ करने का तरीका भी अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, और अल्लाह का जिक्र कैसे करना है, अल्लाह से दुआ कैसे मांगनी है, ये भी तरीका अल्लाह ताला ने खुद सिखाया इस सूरत के एंड पर। और इसके बाद अगली सूरत जो इसी पारे में शुरू होती है, सूरतुन निसा। निसा मीन वुमेन, औरतें, वुमेन। तो इस सूरत का नाम इसलिए ये रखा गया कि इन दिस सूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील द ऑल मैटर्स ऑफ वीमेन, औरतों के तमाम मसाइल इसमें बयान किए हैं, औरतों के हर किस्म के मसाइल, अबाउट द इनहेरिटेंस। इससे पहले, इस्लाम से पहले औरतों को विरासत में, इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ऐसा दीन है जिसने लाजिम कर दिया है कि औरतों जिस तरह इनहेरिटेंस में, विरासत में लड़कों का, बेटों का हिस्सा होता है, उसी तरह बेटियों का भी हिस्सा होता है। जिस तरह मर्दों का हिस्सा होता है, औरतों का भी उसी तरह हिस्सा होता है। ये कुरान ने हिस्सा दिया है, ये इस्लाम ने हिस्सा दिया है, ये इस्लाम ने इज्जत दी है। और ये पूरा का पूरा रुकू है और तमाम हिस्से बयान कर दिए, बेटे का कितना है, बेटी का कितना है, वालदा का, बाप का, चचा, मामू, फूफो, जितने भी रिश्ते हैं, बहन भाई, उनका कितना कितना हिस्सा बनेगा, ये कुरान ने सारा का सारा बयान कर दिया है। और निकाह तलाक के, हाँ, ख़ास तौर पर जो आखिरी बात मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, सिर्फ कुरान ने दीन को मुकम्मल नहीं किया, कुरान के साथ हदीस भी ज़रूरी है। कुरान की समझ नहीं आती जब तक सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिया जाए। द लास्ट रुकू ऑफ दिस सिपारा नंबर 4, Allah subhanahu wa ta'ala said about the all relations, all relatives where we can't do nikah, यहाँ पर निकाह नहीं होता, वो सारे के सारे रिश्ते, 13 रिश्ते अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं।
यानी बिल्कुल मुख्तसर करता जाऊं। Forbidden, this is the verse number 23 of Surah An-Nisa. Hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. The Arabic and the English is, forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your father's sisters and your mother's sisters and your brother's daughters and the sisters' daughters and your mother have the succored you, your foster sisters and the mothers. मुख्तसर ये कि आप खुद भी इसकी तिलावत कर सकते हैं। The verse number 23 of Surah An-Nisa, and the shortly 13 relations, ऐसे रिश्ते हैं कि जहाँ पर निकाह नहीं कर सकते। The lastly one, कि जब एक बहन वाइफ हो, निकाह में हो, तो उसी की दूसरी बहन एक मर्द अपनी निकाह में नहीं ला सकता जब तक पहली मौजूद है। कुरान यहाँ का चुप हो गया, ये इस्लामिक लॉ बन गया कि दो बहनें एक मर्द के निकाह में इकट्ठी नहीं हो सकती। इट इज़ फॉरबिडन, ये हराम है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत सुनाई और इसके बाद इरशाद फरमाया अब हदीस पाक के ज़रिए इस्लामिक लॉ को कंप्लीट कर दिया जाए, मुकम्मल कर लिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे दो बहनें इकट्ठी नहीं हो सकती, इसी तरह फूफो और भतीजी वो भी इकट्ठी एक मर्द के निकाह में नहीं हो सकती। खाला और भांजी, आंटी एंड नीस, वो भी इकट्ठी नहीं हो सकती। ये दो रिश्ते, दो लॉज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुरान ने नहीं बयान किए थे, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दिए। और इसका मतलब ये है कि इस्लामिक लॉ नॉट ओनली कुरान, इस्लामिक लॉ इज कुरान एंड हदीस, कुरान एंड सुन्ना। इफ वी फॉलो बोथ then we are successful in this world and the hereafter. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और कुरान और हदीस को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।